Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 23rd February 2021. I am teaching you chapter number 17 and name of the chapter is the earth and sky. So the name of the chapter is the earth and sky. So what are the things which we learn in this chapter? That is why we say earth as a special planet. What is a solar system? What is the difference between star and planets and the different constellations? So the topic which we will cover in this chapter is that what makes our earth special. Is it clear? What is solar system? Third point is the topics which we will cover in this chapter: difference between stars and star and planets. Difference between star and planets. And the next topic which we will cover in this chapter is the different constellation. So student, the topic which we will cover in this chapter, that is what makes our earth special, what is solar system, what is the difference between stars and planet, and the different constellation. So these are the topics which we will cover in this chapter. So first of all, let's start with the first topic, that is what makes our earth special. So student, why we say earth is a special planet? Because when we will talk about the solar system, so how many planets are in the solar system? 8. Out of these 8 planets, the earth is the only planet on which life is possible. Is it clear? Earth is a planet and earth is the only planet on which life is possible.
That is the reason we say that Earth is a special planet. Now, when we are talking about the surface of the Earth, surface of the Earth. When we are talking about the surface of Earth, because student we are living on the surface of the Earth. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं, हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, we are living on the surface of Earth. ठीक है, हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. ठीक है. एंड द लेयर ऑन विच वी आर लिविंग दैट इज नोन एज क्रस्ट. Is it clear? There are different layers. That is the layer on which we are living on the surface of the earth, that is known as crust. After crust, the layer is of a mantle, and then outer core, and finally the inner core, which is very hard. Is it clear? So the layer on which we are living, that is known as crust, and after crust there is a layer of a mantle, and then outer core. In outer core the temperature is very high. Here the rock and metals are in the form of a liquid, and this is known as lava. In the outer core the temperature is very high. Due to that, even the rocks and metals are also in the form of a liquid, which we say it as a lava. And the inner core is very hard core. So where we are living? So answer is surface of the earth. We are living on the surface of the earth. Now when we are talking about the surface of the earth, then let's understand next question. The surface of the earth is same. Now next question arises, is the surface of the earth is same? So answer is no. Surface of the earth is not same. What type of a surface? So surface of the earth is same. So answer is no. No, the surface of the earth is not same. What type of a surface we see on the earth? That is in some region. Region means area. ठीक है, region means क्या हुआ बेटा? Area. In some regions we see mountains. In some region we see hills. Is it clear? In some region we see plains. Desert. Plateau. And water bodies.
like water bodies like rivers, lake, sea, oceans. ठीक है, तो अब बेटा ये बात यहां से क्लियर हो गई कि हम लोग अर्थ के कहाँ रह रहे हैं, सरफेस पे रह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, तो क्या अर्थ का सरफेस सब जगह सेम है? तो आंसर आया नो। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखो किस तरह का सरफेस है अर्थ पे। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कुछ पार्ट डेजर्ट एरिया भी है, प्लेट्यूज भी हैं। ठीक है, और वाटर बॉडीज हैं अर्थ के सरफेस पे, जैसे रिवर्स है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी हैं, ओशंस हैं। ये सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे हैं। ठीक है, आप लोग जम्मू कश्मीर मैप में आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर या तो आप कभी हिल स्टेशन में कभी गए हो तो आपने देखा होगा माउंटेन्स और हिल्स में ये दोनों ही ऊंचे होते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। सबसे हाईएस्ट रेंज जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर अपने फिजिकल डिवीज़न हम लोग स्टडी करते हैं इंडिया की, तो सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो हिमाद्री है, जहाँ पूरे साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है, वेदर कोल्ड रहता है, एंड दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो। पूरे साल इन माउंटेन्स पे स्नो जमी पड़ी होती है। ठीक है, और ये स्नो क्या है, जो रिवर्स हैं, बहुत सी रिवर्स इस स्नो से फॉर्म होती हैं। ये जो स्नो के बड़े बड़े पीसीज हैं इसको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है, जब ये मेल्ट करते हैं, स्नो मेल्ट करती है तो उसका क्या बन जाता है, वाटर बनता है। तो स्नो के मेल्टिंग से भी बहुत सी रिवर्स फॉर्म हुई हैं, जैसे आपकी होली रिवर, हमारी इंडिया की होली रिवर किसे बोला गया है, रिवर गंगा को। किसे बोला गया है, रिवर गंगा को। ठीक है, तो ये रिवर, इस रिवर की ऑरिजिन किससे हुई है, ग्लेशियर से हुई है। जो पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी है ना, उस बर्फ का पानी जब मेल्ट करता है ना, तो उससे ये रिवर बनी है। ठीक है, और ये कहाँ से रही है, गंगोत्री से आ रही है, उत्तराखंड से। आपने सुना होगा उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड से ये रिवर स्टार्ट हुई है। ठीक है, रिवर गंगा। तो इस तरह और भी बहुत रिवर्स हैं जो माउंटेन्स रिवर्स हैं, रिवर जमुना। ठीक है, ये भी हिमालयन रिवर्स है। अब देखो, माउंटेन्स हिल्स दोनों ही हाइट होती है, लेकिन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर हिल्स की हाइट्स कम होती है। ठीक है, उसके बाद प्लेन्स, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। हम लोग यूपी में रहते हैं, तो हम लोग के रीजन में, मीन्स हमारे एरिया का लैंड कैसा है, प्लेन सरफेस है। पहाड़ों पे जाओगे तो आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स मिलेंगे, वहाँ के रोड भी अप डाउन। ठीक है, आपने देखी होगी रोड्स पहाड़ों की, कैसे माउंटेन्स को काट काट के सड़कें बनाई गई हैं पहाड़ों पे। ठीक है, तो माउंटेन्स हिल्स हो गया, प्लेन्स में सरफेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक, फिर उसके बाद डेजर्ट एरिया। आपने राजस्थान के बारे में सुना होगा, इंडिया का पार्ट है राजस्थान। यहाँ एरिया किससे कवर है, डेजर्ट से। बिकॉज व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, रीजन क्या है कि यहाँ रेनफॉल जो है बहुत लेस है। ठीक है, ड्यू टू लेस रेनफॉल व्हाट हैपन्स, द सॉइल क्रम्बल्स, सॉइल टूट गई, टुकड़े हो गए, और वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, सैंड फॉर्म में चेंज हो गई। तो यहाँ आपको रेत ही रेत मिलेगी, डेजर्ट। ठीक है, अब प्लेट्यूज क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल प्लेट्यूज को हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे माउंटेन्स ऊंचे होते हैं और माउंटेन्स की पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, जैसे ये माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन्स की आप लोग ड्राइंग में बनाते होगे ना, पीक्स बनाते होगे, चोटियाँ होती हैं माउंटेन्स की। ठीक है, तो इसे माउंटेन्स कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ से डिफरेंस समझो। प्लेट्यूज में क्या होगा, प्लेट्यूज भी ग्राउंड लेवल से ऊंचे होंगे, जैसे ये देखो, प्लेट्यूज भी हाइट पे होते हैं माउंटेन्स की तरह, लेकिन माउंटेन्स में क्या बनती है, पीक, चोटियाँ होती हैं। प्लेट्यूज क्या होता है,
माउंटेन्स की तरह ये भी ऊंचे होते हैं लैंड से, लेकिन ऊपर इनका सरफेस क्या होता है, फ्लैट। ऊपर से इनका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यूज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। प्लेट्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं। अदर नेम ऑफ दिस प्लेट्यू इज टेबल लैंड, क्योंकि आपने टेबल देखा है जिसपे आप लोग स्टडी करते हो, नीचे उसके सपोर्ट होते हैं, ऊपर से वो क्या होता है, फ्लैट होता है, जिससे कि आप अपनी कॉपी बुक्स उस पर रख के इजिली पढ़ाई कर सको। तो इसका अदर नेम प्लेट्यूज को हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज को हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज को हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया प्लेट्यूज के बारे में। और वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर बॉडी वाटर के फॉर्म में है, रिवर में है या लेक में है, पाउंड्स में है, सी में है, ओशन में है। सो अब आई होप कि पूरी क्लास को ये समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम अर्थ के कहाँ रहते हैं बेटा, वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेकंड, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम, क्या अर्थ का सरफेस सेम है, तो आंसर हुआ बेटा इसका नो। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, रीजन ये है कि कहीं पे कोई एरिया में क्या है, माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं यूपी में, यहाँ प्लेन है, सरफेस जो है फ्लैट है, प्लेन है। कुछ एरिया डेजर्ट भी हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज मैंने बता दिया, ये भी हिल्स की तरह ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर से ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेट्यूज बोलते हैं। एंड देन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशंस। तो अर्थ का कैसा सरफेस है ये मैंने आपको क्लियरली पूरी क्लास को बता दिया। आई होप कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। देखो, और जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो 72% जो है, 72% क्या है, वाटर है अर्थ पे। एंड 72% वाटर हो गया तो लैंड कितना परसेंट हुआ, 100 माइनस 72 दैट इज 28% इज लैंड, ठीक है। 72% वाटर से कवर्ड है और लैंड कितने परसेंट है, 28%। देखो बेटा, आप लोग को कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, जैसे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, इसी तरह जमीन के बड़े बड़े 7 ह्यूज मासेस हैं, ठीक है। जमीन के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं और ये एक संग जुड़े नहीं हैं, ठीक है। ये एक संग जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे से काफी दूर हैं। और ये कैसे आपस में एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, बाय द वाटर बॉडीज, बाय द वाटर बॉडीज। तो ये जमीन के 7 बिग ह्यूज पीसेस ऑफ लैंड हैं, ठीक है। और बीच में सब क्या है, कैसे आपस में एक दूसरे से टच में है, वो है वाटर से, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये वाटर के थ्रू आपस में एक दूसरे के क्या है, टच में है, ठीक है। तो अर्थ का 72% क्या है, वाटर ही है। देखो, तुम लोग सोचते होगे कि, क्योंकि देखो जनरली आप लोग जैसे यहाँ रह रहे हो यूपी में, आप अपनी चारों तरफ देखते होगे तो आपको लैंड ही लैंड दिखता है। आप कहीं हिल स्टेशन या कहीं आप जाते हो घूमने तो भी आपको लैंड ही लैंड दिखता है। तो आपको लगता होगा कि सर बोल रहे हैं 72% वाटर ही है, लैंड सिर्फ 28% है। तो ये सोच कर आप लोग को बड़ा सोचते होगे ना आप लोग कि 72% वाटर है, तो वो वाटर है कहाँ, कहाँ है वो 72% वाटर। इसके लिए मैंने तुम्हें वाटर साइकिल की प्रोसेस पूरी बताई थी, ठीक है, कि वाटर कहाँ है। देखो, वाटर वाटर बॉडीज में है, जो हिमाद्री रेंज है, हिमालयाज जो बहुत हाइट वाले हैं, ठीक है। तो हिमाद्री रेंज जो है वो पहाड़ पूरे ईयर किससे कवर रहते हैं, स्नो। क्योंकि मैंने बोला था ना, आपको बताया था, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस फॉर्म में होगा तो सन की हीट से जो वो इवापोरेट होता है तब वो गैस फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में होगा तो स्नो के फॉर्म में होगा, आइस फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में रिवर्स के जो वाटर होते हैं ये सब किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में।
तो देखो इतना वाटर 72% कैसे है, क्योंकि वाटर रिवर्स में भी है, लेक में भी है, पाउंड में भी है, सी में भी है, ओशंस में भी है। और जो आप अपने ऊपर एक स्काई देखते हो ना, स्काई है पूरी इतनी बड़ी स्काई है, तो ये भी क्या है, वाटर ही तो है बेटा। सारे माउंटेन्स कवर हैं किससे, स्नो से, जो सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमाद्री, तो वो माउंटेन्स स्नो से कवर हैं, तो स्नो भी क्या है, वाटर ही तो है, सॉलिड फॉर्म में है वहाँ, ठीक है। और वही जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट होता है, तो उससे क्या बनती हैं, रिवर्स बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो 72% वाटर है, तो वाटर कहाँ कहाँ है, वाटर बॉडीज में है। जो आपके सबसे हाईएस्ट रेंज हिमाद्री की है वो टोटली बर्फ से कवर है, तो वो भी वाटर की ही फॉर्म है। और जो आपका ये जो आपको स्काई दिखती है अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर ये जो स्काई दिखती है, ये क्या है, ये भी तो पूरा वाटर ही है। जो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वाटर से ही तो फॉर्म होते हैं, यही तो आपको बताया था वाटर साइकिल में। हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड्स आर फॉर्म विद द वाटर वेपर जब टच में आता है कूल एयर के, तो फिर से वेपर फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने आता है। और ये स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स। तो हमारे ऊपर जितने ये क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं, ये भी क्या है, वाटर ही है। इसलिए वाटर 72% है और लैंड ओनली 28% है। इज इट क्लियर? तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Now when we have take the picture, ठीक है, अब देखो ये पिक्चर्स भी आप देख रहे हो, ये देखो डिफरेंट लैंडफॉर्म दिखाया है। ये क्या है, प्लेन्स, डेजर्ट, हिल्स, माउंटेन, देखो इस पिक्चर में। और ये हमारे अर्थ की पिक्चर है जो सैटेलाइट से ली गई है, ठीक है। ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के राउंड ले रहे हैं, और इसमें बहुत कैमरेज लगे होते हैं, वहाँ से ली गई है ये पिक्चर। तो ये पिक्चर देखो मैक्सिमम हमको क्या, ब्लू ही दिखती है, और कहीं कहीं हमें पैचेस लगते हैं। मैक्सिमम पिक्चर आपको व्हेन यू सी द पिक्चर ऑफ द अर्थ तो मैक्सिमम कलर जो आपको दिखता है, मैक्सिमम ब्लू कलर, क्योंकि मैंने आप लोग से बताया ना कि अर्थ में 72% क्या है, वाटर ही है, और लैंड ओनली 28% है। तो मैक्सिमम ब्लू कलर आपको दिखता है इस पिक्चर में, और पैचेस ऑफ, और स्मॉल पैचेस आपको किसके देखने के लिए मिलते हैं, ब्राउन एंड ग्रीन, ठीक है। सो कुछ पैचेस आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। अब पूछा है भाई, तो इसका रीजन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्या रीजन है। दिस इज बिकॉज द अर्थ ऑफ, इसका रीजन है, दिस इज बिकॉज द surface of the earth, the surface of the earth is mostly covered by water, which appears blue and only partially
बाई लैंड, ठीक है, विच appears brown और ग्रीन, ठीक है। नाउ सी, ऐसा क्यों है, मैक्सिमम ब्लू पोर्शन क्यों दिखता है, इसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया बेटा। दिस इज बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मोस्टली कवर्ड बाई वाटर विच appears ब्लू एंड ओनली पार्शली, कुछ पार्ट इसका क्या है, बाई लैंड विच appears ब्राउन और ग्रीन, which appears brown or green, and brown color is used in the map for the mountains, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये बात भी क्लियर हो गई कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, तो ये इट इज सराउंडेड बाई, ठीक है, सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर, and this is earth is surrounded by layer of air. This is called atmosphere. Earth is surrounded by layer of earth and this is known as atmosphere. So the land, water and air present on the earth make life possible. So what three important things are present? That is land, land भी है यहाँ, water भी है और air भी है, ठीक है। So that is the reason life is possible on this planet. The land, water and air present on the earth make life possible, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट है डिस्टेंस की बात करते हैं। सो आवर प्लेनेट, वी आर गेटिंग the light from the sun, and what is sun? Sun is a star. sun क्या है? स्टार है। तो हमारे प्लेनेट पे लाइट कहाँ से मिल रही है? हमें सन से मिल रही है। सो जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से, वो एकदम राइट डिस्टेंस है। अगर सन बहुत क्लोज होता अर्थ के तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सन की हीट से कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर पाती। इज इट क्लियर? और अगर सन बहुत दूर होता तो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तब अर्थ का टेम्परेचर क्या होता? बहुत कूल होता। तब अर्थ का टेम्परेचर क्या होता? बहुत कूल होता, ठीक है। सो द अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एज ए रिजल्ट इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इफ द अर्थ वॉज टू बिकम एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड, या तो अर्थ बहुत ज्यादा हॉट होती, बहुत ज्यादा हॉट तब होती जब सन क्लोज ज्यादा होता, और या तो अर्थ बहुत कोल्ड होती, तो ऐसे में क्या रीजन होता कि सन अर्थ से बहुत दूर होता, तो लाइफ पॉसिबल होती? नो। अगर ऐसा होता कि सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, दैट इज द राइट डिस्टेंस, if the sun is very close then
आल्सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट होती, और इफ द सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ देन आल्सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल. ओके, वी थैंक यू स्टूडेंट.